वेस्ट सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल वाला पीडीएफ खोल लीजिए। उसमें एक छोटा सा पार्ट है कि what are the effects of solid waste. These are basically the bad effects or the infectious effects of solid waste. So solid waste, if it is not disposed properly, it can lead to health problems and it can cause damage to environment. Some examples are given over here that you can have, dysentery, diarrhea. These types of diseases, they are waterborne and also borne because flies etc. sit on the garbage and then they come and sit on your food or water, and that is how they are transmitted. So proper disposal of solid waste is necessary. इसमें जैसे अभी तक जितना कराया है उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट का एकदम शुरू में बताया था कि एनीथिंग विच इज एनी सॉलिड which is lying at a wrong place or where it is not needed is basically waste. जो अपनी जगह जहां होना चाहिए अगर वहां पे नहीं पड़ा हुआ है तो वो मतलब वेस्ट के ही तरीके से वो काउंट होता है। जहां पे उसको होना चाहिए वहां पे अगर नहीं है, कहीं और पड़ा हुआ है कोई सॉलिड मैटर या मटेरियल, तो वो जो है वेस्ट कहलाएगा। तो उस तरीके वो तो एक मतलब काइंड ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन हो गई सॉलिड वेस्ट की। देन सेकंड क्वेश्चन होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आर देयर। सो क्लासिफिकेशन टिपिकली इज ऑफ 5 टाइप्स: garbage, rubbish, pathological waste, industrial waste and agricultural waste. And the difference in the 5 we discussed in the last lecture. And then we also discussed that what roughly we discussed what one can do with the solid waste, how you can make use of the solid waste, reuse and recycling, and why it is necessary. Because in a country like ours where you are short of resources, you want to make the maximum out of the waste. So to make to gain maximum out of the solid waste, you need to reuse it as much as possible and recycle it as much as possible. So that is the importance of recycling and reuse of solid waste. Then next question is that what are the bad effects of solid waste? How it can be bad for us if it is not managed properly. इसका इसका आंसर यही है कि solid waste, if it is not disposed and managed properly, it can lead to health problems. Examples of health problems, common health problems are like dysentery, diarrhea. And how they spread through solid waste, because flies, other insects, they sit on the solid waste and then they can sit on your food or water, and in this way the infection goes from waste to your body. It is transmitted through the small insects or flies. So that is why solid waste management and disposal is necessary. Now comes the part of how to manage solid waste. There are different steps. First step is the collection of solid waste. Then it is the disposal of solid waste. And then after that, after disposal comes the recovery of material. So typically there are 3 steps: collection, then disposal and recovery or reuse. They are connected, recovery and reuse.
तो सबसे पहले कलेक्शन, first you have to collect the solid waste from all the households, from the entire community, from the entire city. एक एक करके तो होगा नहीं, तो पूरे सिटी का, पूरी कम्युनिटी का, सबका इकट्ठा वेस्ट जो है सबसे पहले कलेक्शन करना है। कलेक्शन कैसे करना है, कहाँ ले जाना है, उसके बाद में उसका डिस्पोजल कैसे करना है, डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजल, which type of disposal method should be used when, and then lastly the recovery, reuse and recycling of solid waste. So first we start with the collection of solid waste. Collection and transportation. अब इसमें कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में जो है, इसमें खाली ये है कि सारे घरों से और कम्युनिटी में जहाँ जहाँ सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, गार्बेज के लिए बिन्स लगे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लगे होते हैं, कैनिस्टर लगे होते हैं, वहां पे लोग डालते हैं और वहां से उसको ले जाके एक कॉमन जगह पे डंप करना होता है। उसके बाद फिर उसका डिस्पोजल किया जाएगा। तो कलेक्शन में कुछ खास नहीं है, हालांकि कलेक्शन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा समय जो है वो सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट का इसी में जाता है। सबसे ज्यादा टाइम जो है वो कलेक्शन में जाता है, डिस्पोजल में उतना शायद टाइम नहीं लगता है जितना कि कलेक्शन में लगता है। तो मैक्सिमम 50% ऑफ solid waste management time actually goes simply in the collection part. So efficient collection and transportation are essential parts of overall solid waste management program, because these two activities constitute about 75% of total cost. तो सबसे ज्यादा टाइम और कॉस्ट जो है वो कलेक्शन में लगता है। सबसे ज्यादा पैसा कलेक्शन, और फिर कलेक्शन के बाद में ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन टू द नियरेस्ट प्लेस वेयर ऑल द गार्बेज फ्रॉम द कम्युनिटी और फ्रॉम द एंटायर सिटी विल बी कलेक्टेड। तो कलेक्शन पॉइंट तक ले जाने में जो कॉस्ट जो आती है, मैक्सिमम जो है, जो पूरे डिस्पोजल के प्रोसीजर में जो कॉस्ट आती है, उसका एटलीस्ट 50% जो है वो केवल कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। द बेसिक मोड ऑफ रिफ्यूज कलेक्शन, रिफ्यूज का मतलब गार्बेज, द बेसिक मोड ऑफ रिफ्यूज कलेक्शन इन इंडिया is from communal storage points. तो वो तो हायरार्किकल होता है, जैसे हम घरों में कूड़ा इकट्ठा किया, फिर घर से उसको उठाया गया, उसके बाद कम्युनिटी का पूरा इकट्ठा किया गया, फिर सारे कम्युनिटीज से ट्रांसपोर्ट होके पूरे शहर का जहाँ पे डंप होता है वहां पे चला गया। तो इस तरीके से कलेक्शन होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब तक पूरे सिटी के कॉमन डंपिंग पॉइंट पे पूरे सिटी का रिफ्यूज या गार्बेज जो है जब तक वहां पे नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसी में 50 to 60% कॉस्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है वो इसी में जाता है, इसी में मैक्सिमम यूज होता है। कलेक्शन में खाली इतना ही है, कलेक्शन ओनली इंक्लूड्स collection from households, then from communities, and then collected to common point in the city, that is collection and transportation, and this constitutes 50 to 60% of the cost of solid disposal. Second step is disposal. The solid waste is collected, transported
and disposed of in one of the following ways. What are those ways? Either it will be open dumping or sanitary landfill or incineration or composting. तो 4 तरीके हैं. अब चारों को कौन सा कब यूज करते हैं वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट पे भी डिपेंड करता है, और लोकेशन में और कौन सा जो है किस टाइप का रिफ्यूज है उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है वो यूज होता है. अब जैसे कंपोस्टिंग जो है वो थोड़ा सा मतलब कंपोस्टिंग सिटी लेवल पे अभी उतना सिंपल नहीं होता है क्योंकि हर चीज तो कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होती है. तो कंपोस्टिंग के लिए एक्चुअली सेग्रीगेटेड होना चाहिए. कंपोस्टिंग के लिए जो है मेनली फल सब्जी इनका जो हाउस होल्ड से निकलता है, पीलिंग्स जो होती हैं जो मतलब वेट वाला होता है या वेस्ट फूड वाला होता है वो कंपोस्टिंग के लायक होता है. लेकिन बाकी चीजें कैंस और बॉटल्स और प्लास्टिक कंटेनर्स ये सब कंपोस्टिंग के लिए थोड़ी ना यूज होता है. तो जैसे कंपोस्टिंग है, कंपोस्टिंग के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड हो, और बहुत ज्यादा अमाउंट में तो इकट्ठा कंपोस्टिंग में थोड़ा दिक्कत आती है. थोड़ा स्मॉल अमाउंट में हो जैसे कम्युनिटी लेवल पे और प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड हो तो कंपोस्टिंग आराम से किया जा सकता है. ओपन डंपिंग तो मतलब ऑब्वियसली सिंपलेस्ट है लेकिन प्रिफर्ड मोड ऑफ डिस्पोजल नहीं होता है क्योंकि उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, जस्ट सिंपली खुले में जो है उसको कहीं पे भी डंप कर दे रहे हैं. and obviously preferably it should be at the outskirts of the शहर के बीच में जहाँ पे कहीं देखा होगा कि ओपनली डंप कर देते हैं कूड़ा तो कितना गंदा लगता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो हम सभी को पता है. सो open dumping is not the preferred way of solid waste disposal. However, still in our country people are doing open dumping. तो ओपन डंपिंग में जो है इसमें दिया हुआ है, in this method the solid waste collected from the town is deposited in low lying land usually on the outskirts of town. और लो लाइंग में सबसे इसमें खास चीज ये है कि लो लाइंग में भी हमेशा नहीं करते हैं, कभी कभी तो जस्ट ऐसे ही सड़क के किनारे उठा के जो है डंप कर देते हैं. वो तो सबसे सबसे गंदा है. आइडियली उसको जहाँ पे बड़ा सा गड्ढा हो शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स पे वहां पे ओपन डंप जो है अगर करना ही है तो वहां पे करना चाहिए. It should be in low-lying land and on the outskirts of town. Since the open dumps are uncovered, these attract flies, insects, and rodents like rats, and odors are produced. तो ये उसका आंसर है कि why open dumping is not preferred, because it will attract flies, insects, rats, etc. All these will go there and bad smell will be produced. So that is why open dumping is not the preferred method. This method is unscientific. Obviously it is unscientific and causes nuisance to public and is subject to fire hazard. तो न्यूसेंस तो है ही है क्योंकि वहां पे इतनी से मक्खी आएंगी, गंदगी होएगी, स्मेल आएगी. सो दैट इज व्हाई इट इज अ न्यूसेंस टू पब्लिक एंड इट इज सब्जेक्ट टू फायर हैजर्ड क्योंकि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो पूरा सूख जाता है. तो कहीं से भी अगर किसी ने एक माचिस फेंक दिया, तीली फेंक दिया तो फिर वो एकदम बुरी तरीके से बर्न होने लगता है. तो फायर हैजर्ड भी होता है जब बहुत ड्राई वेदर में एकदम ड्राई हो जाता है, पड़े पड़े देन इट कैन कैच फायर. डिपेंड करता है क्या उसमें फेंका हुआ है, but it is subject to fire hazard. At the same time, it causes health and pollution hazards
and is not suitable aesthetically. एस्थेटिकली का मतलब कि देखने में बहुत गंदा लगता है, बैड स्मेल आती है, इसलिए वो अनएस्थेटिक होता है. So it is not suitable aesthetically. This method being the easiest, ये गलत इसमें छपा हुआ है, being the easiest is adopted in many Indian towns. तो हमारे यहाँ तो शहरों में तो सभी ने देखा ही है कि प्रिफर्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है जहां तहां लोग करते रहते हैं कि कहीं पे भी कूड़ा जो है वो इकट्ठा कर देते हैं सड़क के किनारे, वो ओपन डंपिंग होता है. कायदे से अगर ओपन डंपिंग ही करना है और कोई चीज पॉसिबल नहीं है तो उसको शहर के एकदम बाहर और लो लाइंग लैंड में डंप करना चाहिए. फिर नेक्स्ट आता है सैनिटरी लैंड फिलिंग. सैनिटरी लैंड फिलिंग भी ओपन डंपिंग की तरह है, खाली थोड़ा सा एडवांस्ड होता है. इसमें जैसे एक लेयर मिट्टी की, फिर एक लेयर कूड़े की, फिर एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर कूड़े की, और ये ओपन नहीं होता है. इसको जैसे काफी डीप जहाँ पे गड्ढा होता है शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में, वहां पे डंप करते हैं और उसमें जो है लेयर लगाते जाते हैं. जैसे एक लेयर कूड़े की, उसके ऊपर फिर एक लेयर मिट्टी की डालते हैं, फिर एक लेयर कूड़े की, फिर एक लेयर मिट्टी की, और एंड में ऊपर मिट्टी से पूरा बंद कर देते हैं, तो ओपन नहीं होता है. इस टाइप से जब लेयरिंग करके जब वहां पे पैक करते हैं सिटी के आउटस्कर्ट्स में लो लाइंग लैंड में, तब उसको सैनिटरी लैंड फिलिंग कहते हैं. सैनिटरी का मतलब है कि इट इज हाइजीनिक वे ऑफ डिस्पोजिंग द solid waste. That is why it is called sanitary. And land filling because you do it in a low lying land, जहाँ पे गड्ढा होता है उसकी फिलिंग करते हैं. और इसका एक फायदा ये भी है कि लैंड इससे जो है वो मतलब नीचे जहाँ पे नीची होती है उसको रेज करने में हेल्प मिलती है. इसी से जो है वो मतलब पार्ट देते हैं, ऊंचा हो जाता है, तो लैंड भी रेज हो जाती है. तो वही इसमें दिया है और ये डायग्राम इसमें दिखाया हुआ है. सैनिटरी लैंड फिलिंग के बारे में जब लिखेंगे तो ये डायग्राम बनाना है. अब ये डायग्राम को देखो, इसमें जो है जो स्ट्रीट लेवल है वो जहाँ पे बुलडोजर बनाया हुआ है कि जहाँ बुलडोजर खड़ा हुआ है वो मतलब स्ट्रीट लेवल है, और नीचे जो है ये उससे स्ट्रीट लेवल से नीचे बड़ा सा जो है गड्ढा है. वर्किंग फेस का मतलब जो स्ट्रीट लेवल पे है जहाँ पे बुलडोजर जो है वो कूड़े को वहां से उठा रहा है और उठा के इसमें डाल रहा है जो ये गड्ढा है. और इसमें ये लेयरिंग करी हुई है कि सेल जैसे बन गए हैं कि कूड़ा है और बीच बीच में मिट्टी है, लेयर है लैंड की, और फिर ये जो डब्बे ऐसे बने हैं उनमें जो है वो मतलब गार्बेज है, और बीच बीच में ये सब जो है लैंड है. और फाइनल कवर जहाँ पे लिखा हुआ है वो मतलब सबसे ऊपर जो है इसमें मट्टी की लेयर रहती है, और ये कभी भी ओपन नहीं छोड़ा जाता है. ये लेयरिंग करके और जो है हमेशा बंद कर देते हैं. फिर जब कूड़ा लेके आते हैं, जब वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तब फिर ऊपर से मिट्टी हटा के पहले कूड़ा भरते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर कूड़ा भरते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं. ऐसे धीमे धीमे उसको पाटते जाते हैं. तो धीमे धीमे जो है वो गड्ढा जो है वो भरता जाता है और जो है लैंड का लेवल जो है रेज हो जाता है. तो इससे एक तो गड्ढे को पाटने में भी हेल्प मिलती है, इससे पट जाता है, और जो है उसका यूज भी हो जाता है कि प्रॉपर तरीका है लैंडफिल करने का, और सैनिटरी है, उससे जो है मक्खियां वगैरह नहीं आती क्योंकि वो हर समय जो है क्लोज्ड होता है. ऊपर हमेशा हर समय लैंड होती है, ओपन ओपन नहीं होता है, इसलिए सैनिटरी होता है, तो मक्खियां नहीं आती हैं. और
ये जो है इसमें लेबल किया हुआ है, जैसे ओरिजिनल ग्राउंड, डेली कवर, सेल्स जो है वो है जहाँ पे जो है गार्बेज है। और डेली कवर का मतलब है कि डेली उसमें जो है कुछ ना कुछ मिट्टी, जब गार्बेज लाते हैं तो कुछ ना कुछ मिट्टी जो है उसमें डेली डाली जाती है। इंटरमीडिएट कवर का मतलब है, जो इंटरमीडिएट कवर लेबल किया है उसका मतलब है कि जो गार्बेज की लेयर के इमीडिएटली ऊपर जो लैंड डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, उसको वो इंटरमीडिएट कवर हुआ, बीच वाला। और ओरिजिनल ग्राउंड जो है वो मतलब जो ओरिजिनली जहां तक गड्ढा है वो लेवल है ओरिजिनल ग्राउंड। इंटरमीडिएट कवर जो बीच बीच में लैंड है वो इंटरमीडिएट कवर है। फाइनल कवर का मतलब जो एकदम स्ट्रीट लेवल पे जो लैंड दिख रही है वो फाइनल कवर है। तो स्ट्रीट लेवल से काफी नीचे तक ये भरा हुआ है गार्बेज, लेकिन कभी भी जो है गार्बेज डायरेक्टली जो है ओपन को खुला हुआ नहीं है, वो जो है एक्सपोज्ड नहीं है। This is a modified form of open dumping. Waste is deposited in 0.9 to 4.5 meter thick layers in depressions and then compacted. Compact हो जाता है क्योंकि जब रोज रोज उसमें मिट्टी डालेंगे, गार्बेज डालेंगे और फिर वही उसको दबा देंगे तो दबाने से कॉम्पैक्शन होता रहता है, कॉम्पैक्ट होता जाता है, इसीलिए एकदम टाइट फिल हो जाता है। मतलब जो लैंड रेज होती है वो ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद फिर बैठ जाएगा, वो खूब कॉम्पैक्शन हो जाता है। It is deposited in thick layers in depressions and then compacted and covered at least once a day by earth with bulldozers. बुलडोजर से जो है खोद खोद के मिट्टी जो है उसमें डेली थोड़ी सी डाली जाती है, मतलब डेली थोड़ा जो गार्बेज आता है सिटी का वो, और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। The covering prevents breeding of flies, rats, etc. क्योंकि हमेशा कवर्ड रहता है इसलिए इसमें मक्खी, मच्छर और चूहे ये सब नहीं आते हैं। While selecting site for land filling, it is necessary to examine if any underground potable water source is in the vicinity and whether it will be polluted and if neighborhood habitation would be affected by odor or fire. ये बहुत इम्पोर्टेंट है सैनिटरी लैंड फिलिंग के साथ में कि इसमें इस टाइप से सैनिटरी लैंड फिलिंग में What should be kept in mind, क्या ध्यान में रखना है सैनिटरी लैंड फिलिंग करते समय, वो ये दिया हुआ है कि जब सैनिटरी लैंड फिलिंग करेंगे तो उस समय ये देखना है कि वहां पे लोकल जो उस जगह में जो लोग रहते हैं, सिटी के आउटस्कर्ट्स में तो है लेकिन वहाँ नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनका जो जहाँ से वो पानी लेते हैं उसमें कुछ भी गार्बेज से सीप इन होके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब गार्बेज में कहाँ तक देखेंगे क्या, कहाँ उसमें कोई थोड़ा सा भी अगर कोई टॉक्सिक चीज चली गई है या कोई भी जो है वैसी चीज चली गई है, खराब चीज चली गई है, तो वो जो है वाटर के थ्रू या धीमे धीमे सीप इन होके अगल बगल के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए सैनिटरी लैंड फिलिंग ऐसी जगह में करते हैं जहां पे अगल बगल जो है वहां के लोकल लोगों का कोई वाटर रिसोर्स नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो वो दूर है और अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। और वाटर रिसोर्स के अलावा जो है ऐसे ही फायर हैजर्ड भी देख लेते हैं कि किसी भी तरीके से नीचे तक जो गार्बेज का कॉम्पैक्शन किया है कहीं से भी फायर ना हो, और इतना इस टाइप की फायर ना हो कि जिससे जो अगल बगल जो नेबरहुड में लोग रह रहे हैं उनके यहाँ तक फायर पहुंच पाए। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है। और ऑब्वियसली ओडर, मतलब
गार्बेज तो है ही है, उसको चाहे कॉम्पैक्शन कर दिया, उसमें गड्ढे में फिल कर दिया, और अगर प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं डाली गई है तो फिर स्मेल आएगी। तो उसको खूब अच्छे से कॉम्पैक्शन करके और खूब लेयर्स उसकी लैंड की डाल के, अर्थ की डाल के, जिससे जो है स्मेल नहीं आनी चाहिए आसपास के लोगों को बिल्कुल भी, और उनका वाटर सोर्स नहीं खराब होना चाहिए, और उनको जो है फायर हैजर्ड नहीं होना चाहिए। ये चीजें ध्यान में रख के सैनिटरी लैंड फिलिंग किया जाता है। How the sanitary land filling is advantageous as compared to open dumping, ये advantages of landfill method में डिस्कस किया गया है। Obviously sanitary land filling is better as compared to open dumping, लेकिन उसमें क्या क्या चीज बेटर है कि यही सब बेटर है कि गार्बेज जो है वो एक्सपोज्ड नहीं है, स्मेल नहीं आती है, और उससे लैंड भी रेज हो जाती है, यही सब जो है एडवांटेजेस है। तो प्रोसेस इज कम्प्लीटली सैनिटरी, सैनिटरी का मतलब उससे कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं होता है। हाईली स्किल्ड पर्सनल आर नॉट रिक्वायर्ड, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बहुत साइंटिफिक तरीका है जिसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई स्किल्ड आदमी नहीं चाहिए उसके लिए। लैंड कैन बी सेफली ओवरलोडेड विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। तो मतलब गड्ढा जो है वो आराम से फिल हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कन्वर्ट्स लो लाइंग मार्शी वेस्टलैंड इनटू यूजफुल एरिया। तो जैसे बहुत लो लाइंग जो लैंड होती है, वहां पे बारिश हुई, पानी भर गया, पानी भरने के बाद में भी बहुत दिन तक पानी निकल नहीं पा रहा है, इसलिए उस लैंड को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इस सब में जो है ये काफी फायदेमंद होती है। जैसे जो वो वाला एरिया है, ये गंगा बैराज के आसपास, ट्रांस गंगा सिटी वाला, तो वहां पे जो जैसे बहुत लो लाइंग लैंड है, तो उस सब में जो है उस टाइप की जगहों पे सैनिटरी लैंड फिलिंग किया जाता है सिटी से दूर, जिससे कि उसको रेज किया जा सकता है और फिर वो यूज में आ सकती है। तो जैसे बहुत लो लाइंग लैंड होती है किसी की, तो वहां पे घर बनाने के पहले उसको रेज करते हैं। रेज करने के लिए जो है या तो बहुत सारी मिट्टी खरीद के कई ट्रक मिट्टी वहां पे डलवानी पड़ती है, वरना जो है ये एक तरीका होता है जिससे कि लैंड यूजेबल हो जाती है, फिर गड्ढा फिल कर देंगे और रीयूजेबल हो जाएगी। So it is a good way of converting land that cannot be used into useful land. लो लाइंग मार्शी वेस्टलैंड का मतलब होता है जहाँ पे हर समय पानी भरा रहता है। तो ऐसी लो लाइंग नीचे वाला नीचे की जमीन, नीची जमीन जहाँ पे हर समय पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से वहां पे कोई चीज उग नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाते हैं, घर नहीं बन पाते हैं, तो उसके लिए जो है ये तरीका होता है कि उसको सैनिटरी लैंडफिलिंग करके रेज किया जा सकता है और तब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। It converts low-lying marshy wasteland into useful area. Natural resources are returned to soil and recycled. ऐसा करने में अगर वहां पे गार्बेज डंप करके और एक लेयर गार्बेज एक लेयर लैंड ऐसे लगाते हैं, तो गार्बेज में जो ये फूड वूड का जो वेस्ट होता है वो काफी जो है रिच इन नाइट्रोजन पोटेशियम होता है, क्योंकि उसी सबसे कम जैसे कंपोस्टिंग करके फर्टिलाइजर बनता है। तो अगर हमने कंपोस्टिंग नहीं भी करी है, उससे सैनिटरी लैंड फिलिंग कर दिया है, तो भी वो धीमे धीमे और खूब कॉम्पैक्शन कर दिया है, तो धीमे धीमे जो है उससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे फर्टिलाइजर जो है वो बनेगा, अपने आप स्वतः फर्टिलाइजर बनेगा, और फिर उससे वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चरली जो है बेटर हो जाएगी। तो उससे जो नेचुरल लिखे नेचुरल रिसोर्सेज आर रिटर्न टू सॉइल एंड रिसाइकिल, बिकॉज देयर यू आर डंपिंग अ लॉट ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, हाउस होल्ड वेस्ट, organic waste,
and they all contain lot of nitrogen, phosphorus, which will eventually go in the ground. It will be recycled, and then after recycling, then it will turn the land into agriculturally useful land. Then what are the disadvantages of sanitary landfilling? So sanitary landfilling again is not as good as incineration. So although it is much better as compared to open dumping, sanitary landfilling is much better, but still it has some disadvantages also. What are the disadvantages? That for sanitary landfill you require a large area, बड़ी जगह चाहिए. पूरे सिटी का जो रिफ्यूज है उसको वहां पे धीमे धीमे लेयर्स में डंप करने के लिए कोई छोटा सा गड्ढा नहीं, एकदम बड़ी सी लो लाइंग लैंड चाहिए. Since land is available away from town, transportation cost is heavy. तो ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा. शहर के एकदम बीच में उतना बड़ा लो लाइंग लैंड लेके तो सैनिटरी लैंडफिलिंग नहीं हो सकता है. तो इसलिए जो है, जो जितना पूरे सिटी का जो गार्बेज होगा उसको कलेक्ट करना पड़ेगा और कलेक्ट करके उसको उसी स्पॉट तक ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा. तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़ेगा. That is disadvantage, that the transportation cost is heavy. Causes fire hazard due to formation of methane in wet weather. उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता. जैसे कॉम्पैक्शन कर रहे हैं हर समय, ऊपर लैंड है, डायरेक्टली गार्बेज जो है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड नहीं है, पर फिर भी जैसे आजकल के मौसम में कि बारिश हो रही है, तो बारिश होएगी तो धीमे धीमे वाटर के साथ में जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसके कन्वर्जन से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, और वो मीथेन गैस एनवायरनमेंट में जाएगी. और मीथेन जो होती है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, मतलब बहुत जल्दी जलने लगती है. इट कॉजेज फायर वेरी इजीली. तो उस तरीके से फायर हैजर्ड जो है वो होता है. एक तो फायर हैजर्ड इसलिए होता है कि अगर ड्राई वेदर है तो ड्राई वेदर में सब कुछ एकदम सूख गया है तो सूखी चीज में बहुत जल्दी आग लग जाती है. और वेट वेदर में भी फायर हैजर्ड होता है, क्योंकि वेट वेदर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है. तो मेन जो है यही 3 डिसएडवांटेज हैं. बड़ा एरिया चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, और मीथेन के प्रोडक्शन से फायर हैजर्ड. क्योंकि ड्राई तो उतना जल्दी जो है वो नहीं होता है, बहुत रेयरली उतना ज्यादा ड्राई होगा कि पूरा एकदम जो है बुरे तरीके से जलने लगे, क्योंकि डेली उसमें लेयर डालते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो ज्यादा मॉइस्चर वाला रहता है. तो ज्यादा फायर हैजर्ड का डेंजर जो है मीथेन के प्रोडक्शन से रहता है. ये 3 डिसएडवांटेज है, और बाकी तो इसके एडवांटेजेस हैं ओवर दी ओपन डंपिंग. ये सब जो है डिस्पोजल के तरीके हैं. तो ओपन डंपिंग हो गया, सैनिटरी लैंडफिलिंग हो गया, 2 तरीके ये हो गए डिस्पोजल के. अब 2 तरीके और हैं, इंसिनरेशन और कंपोस्टिंग. इंसिनरेशन का मतलब होता है बर्न करना, लेकिन जब प्रॉपर एयर और उसकी प्रॉपर कंडीशंस में जब हम ऐसे बर्न करते हैं कि मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू मिले, तो उसको सिंपल बर्निंग ना बोल के उसको इंसिनरेशन कहते हैं. दूसरा इंसिनरेशन का मतलब, इंसिनरेशन का मीनिंग एक्चुअली होता है कंप्लीट कंबशन.
उस तरीके से बर्निंग और इंसिनरेशन जो है उनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो इंसिनरेशन का मतलब वही बर्निंग हुआ, बट बेसिकली इंसिनरेशन मीन्स proper burning or complete combustion with appropriate amount of oxygen, that is called incineration. And incineration implies that it is complete combustion, means the material is totally oxidized to very basic carbon dioxide, water vapors, like that. So nothing else is left over. Everything is converted to carbon dioxide, water vapor, any organic compound. That is called complete incineration. Incineration में दिया है, in this method the refuse is burnt in a controlled manner, जो अभी बताया, मतलब properly जब उसको burn करते हैं, proper burning जो होती है उसको incineration कहते हैं। ऐसे तो इंसिनरेशन मतलब बर्निंग ही होता है, बर्निंग हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन उसको जब प्रॉपरली एकदम कंप्लीट करते हैं तब वो इंसिनरेशन कहलाता है। इंसिनरेटर्स आर बिल्ट विद लाइंड फर्नेसेस, ग्रेट एरिया फॉर बर्निंग। ग्रेट एरिया का मतलब जाली वाला, जालियां जाली जैसी लगी होती, जिसके नीचे से कोयला या कुछ भी जो भी चीज जला के उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो जाली टाइप, और उसके ऊपर जो है वो रिफ्यूज होगा जो बर्न होगा। तो ग्रेट एरिया मतलब जाली जिसके ऊपर रिफ्यूज रखा होगा और नीचे से जो है बर्न करेंगे। एयर ब्लोअर्स मतलब नीचे फर्नेस होगी, फर्नेस के ऊपर ग्रेटिंग होगी, मतलब जाली होगी और उसके ऊपर रिफ्यूज होगा और नीचे से फर्नेस से बर्न होगा। एयर ब्लोअर्स फॉर एडिंग कंबशन एंड ऑयल बर्नर्स टू प्रोवाइड एडिशनल हीट टू बर्न वेट गार्बेज। मतलब ऐसे फर्नेस यूज करेंगे। फर्नेस में क्या यूज करते हैं, फर्नेस में डिपेंड करता है, कोयला वगैरह यूज करते हैं, किस टाइप का फर्नेस है। इलेक्ट्रिक फर्नेस भी होते हैं और कोयले वाले भी फर्नेस होते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फर्नेस है, कितना टेम्परेचर जो है जनरेट कर रहे हैं। नीचे फर्नेस होगा, उसके ऊपर ग्रेटिंग होगी, जाली होगी लोहे की, उसके ऊपर कचरा होगा, नीचे से फर्नेस से बर्न होगा और जो है उसमें हवा ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, क्योंकि अगर एयर नहीं ब्लो करेंगे तो जो थोड़ा सा वेट गार्बेज होगा वो बर्न नहीं होगा बिना एक्स्ट्रा एयर के। सो एयर ब्लोअर्स आर देयर फॉर एडिंग कंबशन, कंबशन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए थोड़ा एयर ब्लो करते हैं, और जो थोड़ा सा गीला गार्बेज या रिफ्यूज होता है उसको प्रॉपरली बर्न करने के लिए जो है बजाय कोयले के ऑयल बर्नर यूज करते हैं, तो वो और ज्यादा एफिशिएंट होता है। ऑयल बर्नर से और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो मतलब जैसे सबसे कम हीट वाला तो कोल वाले बर्नर हो गए, फिर उसके बाद में ऑयल बर्नर, उससे और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो थोड़ा गीला होता है वो भी बर्न हो जाता है। और उससे ज्यादा एफिशिएंट बर्नर फिर इलेक्ट्रिक वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं कि इलेक्ट्रिकली जो है वो बर्न करेंगे। तो फर्नेस के ऊपर ग्रेट एरिया के ऊपर रिफ्यूज और ऑक्सीजन ब्लोअर्स फॉर burning, and then apart from oxygen blowers, simple are coal burners, then oil burners, and then still further you can have burners or electric furnace. For Indian refuse, additional fuel is required for complete combustion, and therefore the cost is high. Hence, incineration method is commonly adopted for disposing hazardous toxic waste. ये जो पॉइंट है, दिस इज पर्टिनेंट टू अवर कंट्री। ऐसे जो है वो एडवांस जगहों पे इंसिनरेशन इज भी
most preferred method for disposing garbage. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए मोस्ट प्रिफर्ड मेथड जो है वो इंसिनरेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम है क्योंकि वेट, ड्राई और वैसा मतलब नॉन पिट्रेसेबल, पिट्रेसेबल और कम कैलोरीफिक वैल्यू वाला, मॉइस्चर वाला, बिना मॉइस्चर वाला कुछ भी सेग्रीगेट नहीं करते हैं, सब कुछ मिक्स्ड रहता है गार्बेज में। इसलिए जो है वो जैसे अगर कम हीट में बर्न करेंगे तो आधा बर्न होगा, आधा रह जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ अगर इंसिनरेशन करना है तो उसमें जो है एयर ब्लोअर भी चाहिए और ज्यादा हीट वाला जो है वो फर्नेस भी चाहिए, क्योंकि काफी सारा वेट गार्बेज भी होता है। तो उसको थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पे और एयर ब्लो करके, एड करके, बेटर बर्नर यूज करके तब इंसिनरेशन कर सकते हैं। वरना हमारे वही कंट्री के अकॉर्डिंग जो है सैनिटरी लैंड फिलिंग जो है सबसे अच्छा काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ओपन डंपिंग भी बहुत करते हैं, जो कि बहुत ही सबसे अनप्रिफर्ड तरीका होता है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन, इसमें पीडीएफ में सभी कुछ जो है वो दिया हुआ है। अगर उसमें पीडीएफ में कहीं पे जो है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो साथ के साथ उसको फिर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कर लो या फिर लिखवाना है तो बता देना। वैसे उसमें सब कुछ उसमें दिया हुआ है, इसीलिए लिखवा नहीं रहे हैं, इसी से बता रहे हैं। जो पीडीएफ अपलोड किया है सब कुछ इसी में जो है एकदम प्रॉपरली एक्चुअली दिया हुआ है। Advantages and disadvantages of incineration. The residue is only 20 to 25% of original weight. The clinker can be used after treatment. It requires very little space. Cost of transportation is not high as incinerators located within city limits. Safest from hygienic point of view. ये इंसिनरेशन के एडवांटेजेस हैं कि रेसिड्यू का मतलब जलने के बाद में जो बच जाता है, जलने के बाद जो रेसिड्यू, उसको ऐश इसलिए नहीं लिखा है कि जैसे क्लिंकर वर्ड लिखा है, क्योंकि उसमें जो है जो बचता है हमारे यहाँ चूंकि मिक्स्ड गार्बेज होता है, इसलिए केवल एकदम ऐश नहीं बचता है, उसमें कुछ सॉलिड जैसा भी बचता है जिसको क्लिंकर कहते हैं। और ये क्लिंकर जो है वो सड़क वड़क बनाने में नीचे जो है उसको बिछाने के काम में आता है, तो क्लिंकर भी यूज हो जाता है। और जो रेसिड्यू, जो ऐश टाइप जो बचता है वो बहुत कम होता है, केवल जितना गार्बेज होता है उसका केवल 20% जो है वो ऐश प्रोड्यूस होता है, तो वो ऐश फेंक दिया जाता है और क्लिंकर जो है वो रोड बनाने में यूज हो जाता है। और इंसिनरेशन में ओपन डंपिंग या फिर सैनिटरी लैंड फिलिंग के कंपैरिजन में बहुत कम जगह चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई नहीं होती, क्योंकि वो सिटी के अंदर ही, सिटी की पेरिफेरी के अंदर ही जो है जगह जगह इंसिनरेटर होते हैं, जबकि डंपिंग के लिए एकदम सिटी के बाहर ले जाना पड़ता है, आउटस्कर्ट्स पे ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ता है, इसलिए इसमें जगह ज्यादा नहीं चाहिए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नॉट हाई एज इंसिनरेटर्स आर लोकेटेड विद इन सिटी लिमिट्स, तो सिटी लिमिट्स के अंदर ही होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती है और जो है ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती है। इट इज सेफेस्ट फ्रॉम हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली इट इज सेफेस्ट क्योंकि इसमें जो है ना तो ज्यादा जो है वो गैसेस निकलती हैं, ना एनवायरनमेंट में जो है कोई स्मेल आती है, ना फ्लाइज वगैरह का, और जो है फ्लाइज और इन सब का, कीड़े मकोड़े, चूहे, इनका कोई भी इसमें डेंजर नहीं होता, तो हेल्थ हैजर्ड जो है इंसिनरेशन में नहीं होता है। ये एडवांटेजेस हैं इंसिनरेशन के।
लेकिन इसके लिए जो है प्रिफर्ड वही सेग्रीगेशन जो है वो जरूरी है। डिसएडवांटेज क्या है? इट्स कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, इट नीड्स स्किल्ड पर्सनल, एयर पॉल्यूशन में बी कॉज्ड। ये डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर ब्लोअर चाहिए और सेटअप चाहिए, ग्रेट एरिया चाहिए, फर्नेस चाहिए, ऑयल बर्नर चाहिए, क्योंकि जो है वो एड करने के लिए कंबशन को ऑयल बर्नर चाहिए, एयर ब्लोअर चाहिए, फर्नेस चाहिए, ग्रेट्स चाहिए। तो इसलिए इसमें स्किल्ड लोग चाहिए और कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि स्किल्ड पर्सन को पैसा देना पड़ेगा और ये सारी चीजें चाहिए, फर्नेस वगैरह चाहिए, एयर ब्लोअर चाहिए, सेटअप चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगी और प्रिफर्ड तरीका है क्योंकि पॉल्यूशन इसमें जो है कम होता है। लेकिन एयर पॉल्यूशन जो है वो हो सकता है, क्योंकि जब बर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी, वाटर वेपर निकलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी जैसे ग्रीन हाउस गैसेस में आ गया तो ग्रीन हाउस गैसेस तो निकलेंगी जो एनवायरनमेंट में जाएंगी, इसलिए जो है एयर पॉल्यूशन इसमें होएगा, वो डिसएडवांटेज है। फिर नेक्स्ट डिस्पोजल का तरीका है कंपोस्टिंग। तो सैनिटरी लैंडफिलिंग हो गया, ओपन डंपिंग हो गया, इंसिनरेशन हो गया, देन कंपोस्टिंग। Composting is the biological decomposition of organic substances available in the waste under controlled conditions. Rotting, putrefaction, etc. are natural processes that take place in controlled manner. The compost thus formed under controlled conditions is a brown peaty material. तो ऐसे तो कंपोस्टिंग जैसे अपने घर में कहीं जो है किनारे मिट्टी में जो छिलके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह के जो पीलिंग है वो सब आप इकट्ठा करते जाइए, डालते जाइए, तो इवेंचुअली जो है वो धीमे धीमे जो है उससे उसका कंपोस्टिंग होता है, क्योंकि वो सड़ेगा, पहले उसका रॉटिंग होगा, फिर पिट्रीफैक्शन होगा, मतलब वो सड़ेगा, सड़ने के बाद में नेचुरल प्रोसेस है, उसी में जो है उससे अपने आप सॉइल के बैक्टीरिया से जो है वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट होएगा। अब अगर एकदम जमीन के अंदर है तो एनारोबिक कन्वर्जन हो सकता है, अगर एक्सपोज टू एयर है तो एरोबिक कन्वर्जन हो सकता है। दोनों तरीके की कंपोस्टिंग होती है, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। For centuries, refuse has been used for producing manures. Manures means fertilizers. However, systematic ways of preparing compost was developed by Lord Howard and is known as the Indore process. This involves the laying of alternate layers of salt and the putrescible material such as night soil, animal dung, garbage, etc. The mass is usually turned double during the compost process. मतलब वो जब पिट्रेसिबल होता है, जब वो सड़ता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो अपने आप फूल के दुगना हो जाता है। वही लिखा है कि मास यूजुअली टर्न्स डबल ड्यूरिंग कंपोस्ट प्रोसेस। वो अपने आप ही स्वतः उसमें जो गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं तो उससे वो फूल जाता है, वो दुगना लगता है, डबल हो जाता है। ये इंदौर प्रोसेस है और ये एनारोबिक तरीका है कंपोस्टिंग का। The compost is formed by anaerobic bacteria in absence of oxygen. There are two systems by which compost can be produced, aerobic and anaerobic. तो एनारोबिक वाला तो ये तरीका है कि उसमें ऑल्टरनेट लेयर्स जो है वो डाल देते हैं, जैसे काऊ डंग और फिर जो है कुछ और ऑर्गेनिक मैटर, फिर काऊ डंग, उस तरीके से लेयर्स में डाल देते हैं, अपने आप नेचुरली जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है एनारोबिकली।
In the anaerobic system, anaerobic bacteria perform the work in absence of oxygen. The disadvantages of anaerobic system are process is slow, extending over a period of 4 to 12 months. तो ऐसा नहीं है कि जो है एक हफ्ते में कंपोस्ट रेडी हो जाएगा. कंपोस्ट रेडी होने में महीनों लगते हैं, मतलब आराम से 4-5 महीने, 6 महीने या साल भर भी लग सकता है. And it is a low temperature process. It produces offensive odor. जैसे यहाँ पे कैंपस में जगह जगह कई जगह कंपोस्टिंग का इन्होंने लगा रखा है, ड्रम्स लगा रखे हैं, उसमें कंपोस्टिंग होता रहता है. तो लेकिन उसमें जब कंपोस्टिंग शुरू होता है तो उसके बाद में फिर वो स्मेल आती है, ओडर आती है जो दूर दूर तक फैल जाती है. तो इट प्रोड्यूसेस ऑफेंसिव ओडर इफ इट इज एनाएरोबिक कंपोस्टिंग. इन दी एरोबिक प्रोसेस में जो है कम स्मेल आती है. और in the aerobic process the compost is produced by aerobic bacteria. High temperature is produced but bad odors are absent and compost is formed rapidly. एरोबिक वाला थोड़ा फास्टर होता है, एनाएरोबिक वाले में टाइम ज्यादा लगता है. एरोबिक वाले में जो है कम टाइम लगेगा. एनाएरोबिक में 6 महीना लगेगा तो एरोबिक वाले में 2 महीना लगेगा. एरोबिक में टाइम कम लगता है, स्मेल भी कम आती है, और एनाएरोबिक वाले में बहुत स्लो होता है और स्मेल जो है वो बहुत आती है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. तो ये 4 तरीके हैं डिस्पोजल के: ओपन डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड देन कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग वाला काफी यूजफुल होता है लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे नहीं हो सकता है. आजकल तो कंपोस्टिंग जो है वो हाउस होल्ड लेवल पे भी लोग करते हैं. छोटे छोटे आजकल आते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, बकेट टाइप के आते हैं, अमेज़न वगैरह पे बहुत सारे मिलते हैं कंपोस्टिंग के, जिसमें डेली का घर का जो है वेजिटेबल फ्रूट्स वाला कूड़ा डाल दीजिए, उस कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. उसको अपने पॉट्स और जो है किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर की जगह. फिर रिकवरी ऑफ मटेरियल, लास्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लास्ट पॉइंट है रीयूज एंड रिसाइकलिंग, या फिर जिसको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ सॉलिड वेस्ट, या रिकवरी ऑफ सॉलिड वेस्ट भी नहीं, रिकवरी ऑफ मटेरियल या फिर रिकवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें 2 हैं, रीयूज और रिसाइकलिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं. रीयूज उसको कहेंगे जैसे कि वही पुराने जमाने में जो कोल्ड ड्रिंक की जैसे कांच की बोतल होती थी तो उसका रीयूज होता था, उसको स्टेरिलाइज करके फिर से रीयूज करते थे, गलाते नहीं थे पूरा, जस्ट उसको क्लीन करके स्टेरिलाइज करके फिर से रीयूज करते थे, वो रीयूज हुआ. और रिसाइकलिंग वो हुआ जैसे वेस्ट प्लास्टिक, टूटे फूटे प्लास्टिक को पूरे तरीके से गला के फिर से प्लास्टिक मिल जाएगा और उसी प्लास्टिक को फिर से मोल्ड करके नई चीज प्लास्टिक की बनाना, वो रीयूज हो गया, रिसाइकलिंग हो गया वो. तो रीयूज जिसको एज सच क्लीन करके फिर से यूज करते हैं वो रीयूज हो गया. रिसाइकलिंग जिसको टोटली गला के फिर से बनाते हैं वो रिसाइकलिंग हो गया. जैसे कैंस वगैरह को पूरा गला के फिर से नए कैन बनाएंगे तो रिसाइकलिंग हो गया. और बोतल को अगर वॉश करके स्टेरिलाइज करके फिर से यूज करेंगे तो रीयूज हो गया. रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल में दिया है रीफिलेबल कंटेनर्स, जो भी रीफिलेबल होते हैं वो रीयूज होते हैं. रीफिलेबल कंटेनर्स which are discarded after use can be reused. Villagers make casseroles and silos from waste paper and other waste material, making rubber rings from the discarded cycle tubes which are used by the newspaper vendors instead of rubber bands, reduces waste generation during manufacturing of rubber bands. ये तो इस टाइप से रीयूज होता है, जैसे साइकिल के ट्यूब्स वगैरह को काट काट के रबर बैंड बनाना, उनको यूज करना,
और वेस्ट पेपर के जो है वो बनाना, थैली बनाना, उनको यूज करना, कंटेनर्स को फिर से स्टेरिलाइज करके रीयूज करना, ये सब रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल है. Because of financial constraints, poor people reuse their materials to the maximum. Recycling of material. Recycling is the reprocessing of discarded material into new useful products. जैसे formation of some old type products. For example, old aluminum cans and glass bottles are melted. पूरा जब melt करके फिर से cast करते हैं, are melted and recast into new cans and bottles, then that is recycling. ऐसे ही formation of new products, जैसे प्लास्टिक को पूरी तरीके से गला के फिर से नई प्लास्टिक की चीज बनाना. Preparation of cellulose insulation from paper, preparation of fuel pellets from kitchen waste, preparation of automobiles and construction material फ्रॉम स्टील कैंस. मैं बिल्कुल स्टील के और डिस्कार्डेड ये कैंस वगैरह से कुछ ऑटोमोबाइल वगैरह में यूज करने के लिए कुछ पार्ट बना लेना, उसको एकदम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज कर लेना, गला के उससे मतलब स्टील निकाल लिया, या ऐसी जैसे प्लास्टिक गला के प्लास्टिक मिल गया फिर रीमोल्ड कर लिया, तो वो रिसाइकलिंग कहलाएगा. बस एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूज दिया 2 लाइन में. द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग सेव्स मनी, एनर्जी, रॉ मटेरियल, land space, and also reduces pollution. Recycling of paper will reduce cutting of trees for making fresh paper. Reuse of metals will reduce mining and melting of ores for recovery of metals from ores and prevent pollution. तो यही इसका यूज है कि why is recycling and reuse important? Because you are reducing the financial burden, and plus you are saving the energy and the raw materials. So saving money, energy, raw materials, and reducing finances, this is the main advantage of recycling and reuse. जो main point है वो याद रखिएगा. Reducing finances and saving money, energy, raw materials, space, reducing pollution. इस तरीके से जो मेन वर्ड है वो जो है याद रखना. तो ये हो गया पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. इसके बाद फिर वही कराएंगे हैजार्डस वेस्ट. हैजार्डस वेस्ट वाला मैंने पोस्ट किया था कुछ, उसको देख लेंगे. वो हैजार्डस वेस्ट कराएंगे इस तरीके से. कल जो है वो ऐसा करेंगे, कल हम लेंगे फिर सेम टाइम पे. कल जो है उस दूसरे वाले कोर्स का हम स्टार्ट करेंगे. न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर जो है वो ये स्टार्ट करेंगे. आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, जिससे वो जो कोर्स जो रत्ना मैडम करा रही है उसका सेकंड यूनिट का पार्ट जो है वो हमको कराना है. वो सेकंड यूनिट की पता नहीं कुछ हेडिंग अजीब सी उसमें दी हुई है सिलेबस में, लेकिन उसमें एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर है और फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, जेनेटिक कोड है. ये इतना पोर्शन हमको कराना है, उसको जो है करा देंगे. तो अभी कल हम लेंगे सेम टाइम पे. ठीक है. ओके मैम. ओके. हम जो अभी हाथ से बना हुआ वाला मैंने पोस्ट किया है न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, अभी हम देखेंगे किसी बुक में अच्छा सा मिल जाएगा तो उसको भी हम अभी अपलोड कर देंगे, तो उसको भी निकाल लीजिएगा फिर. ठीक है. ओके मैम. ओके. सो टुमारो अगेन सेम टाइम. ओके मैम. थैंक यू मैम. बाय.